Hi everyone, very warm welcome to this recorded webinar on engineering jobs the reality check. I am आशुतोष भारद्वाज और आज हम बात करेंगे about the most relevant topic which is very critical as of now, especially for the students or the fresh graduates or even young professionals. We are going to take a hard or honest look at what engineering careers really looks like in today's world, which is 2025 and beyond. So let's start with a simple story of my childhood. When I was in school, तो मुझे बार बार एक बात सुनाते थे सब लोग कि या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ एंड योर लाइफ विल बी सेट. तो इंजीनियरिंग कर लो, टेक अ डिग्री एंड देन समझो कि आपकी नौकरी लग जाएगी एंड यू विल हैव अ ग्रेट करियर ओवर देयर. एट दैट टाइम इट वाज वेरी राइट एंड लोगों का एक ड्रीम होता था दैट वी विल बी डूइंग द इंजीनियरिंग, डिग्री मिल जाएगी, देन वी विल बी हैविंग अ नौकरी एंड वेल. But the truth is, in today's world, this statement is not right. Now the reality is something different. Reality is very hard at this point of time. आज की डेट में there are lakhs of people, lakhs of students who are doing the engineering graduation. लेकिन वो सिर्फ डिग्री लेने के हिसाब से करियर को सिक्योर करने की बातें कर रहे हैं, which is not right at that point of time, at today's time basically. कई लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारे लोग अपने फील्ड में जॉब ही नहीं कर पा रहे हैं. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज हैपनिंग. सबसे इम्पोर्टेंट, हमें ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट वी डोंट फॉल इनटू दिस सेम ट्रैप. इस वेबिनार में वी विल अनलॉक द कॉमन मिथ, विल ब्रेक देम विद द डेटा, विद द प्रॉपर डेटा, एंड देन हम बात करेंगे आज के ज़माने में कौन से स्किल्स और माइंडसेट ट्रूली मैटर करते हैं. So let's begin this journey towards the clarity, awareness and smart choices. All right. So अब हम बात करते हैं एक major change की, which is in the hiring landscape. Now for the decades, like for last 10 years or something, companies like TCS, Infosys, Wipro और जो बड़ी बड़ी IT firms और service based companies थी, they were doing the mass hiring. हर साल वो लाखों इंजीनियर्स को रिक्रूट करते थे, स्पेशली फ्रेशर्स को. एक समय था when TCS was doing 1 lakh plus engineering hiring and in a single year, and this was the same story for Infosys, Wipro and Cognizant as well. Now let us fast forward to 2025. Now TCS announced that they will be hiring only 45,000 people in this year. Talk about Infosys, even the previous number is there. अब यहाँ ये सिर्फ एक ड्रॉप नहीं है which is like a number drop, rather it's a pattern जो पूरी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस सडन शिफ्ट इज देयर. क्या ऐसा बदल गया है? लेट अस ब्रेक दैट डाउन. सो आई विल टेल यू द रीजन. द फर्स्ट रीजन इज द ऑटोमेशन. नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ रिपीटेटिव जॉब्स जैसे टेस्टिंग, सपोर्ट, बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग. उन सब के लिए पहले फ्रेशर्स को हायर किया जाता था. नाउ देयर इज अ ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल टू हैंडल दोज काइंड ऑफ जॉब्स. दैट्स वन थिंग. लाइक फॉर the work which was requiring a team to complete, now one tool is enough to do that. Second reason is AI/ML. Artificial intelligence is rapidly changing and adding the processes, और इसने हमारे decision making को बहुत सारा optimize कर दिया है. Many routine tasks which was earlier done manually, now they are all automated using the AI tools. So companies do not need as many human resources for the same task. Third point, स्किल फर्स्ट हायरिंग. पहले सिर्फ डिग्री मैटर करती थी, बीटेक हो गया तो जॉब मिल जाती थी, बट अब कंपनीज देख रही हैं व्हाट रियल वर्ल्ड स्किल्स यू हैव. कैन यू कोड, कैन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और कैन यू अडैप्ट टू द चैलेंजेस और द न्यू चेंजेस कमिंग इनटू द इंडस्ट्री. नाउ द फोर्थ वन इज फोकस ऑन क्वालिटी और ओवर क्वांटिटी. दिस इज अ रियल शिफ्ट. पहले 100 लोग हायर होते थे हु आर डूइंग द ऑन जॉब ट्रेनिंग. उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद देयर वाज अ जॉब एंड देन people used to see that how many of them are actually resilient to the changes and actually resilient to the software. So companies देखती थी that let us hire 100 people and we'll keep 50 out of them or 40 out of them after the on-job training. Now companies in today's world, they would like to have only 10 people who has a top-notch quality in their work, who are already trained, already skilled. So in short, companies अब engineers नहीं, they are searching for problem solvers. मतलब डिग्री तो होनी ही चाहिए, बट दैट इज नॉट इनफ. इंडस्ट्री को ऐसे लोग चाहिए जो रियल चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं, फास्ट लर्न कर सकते हैं एंड वैल्यू ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द डे वन. और ये सिर्फ IT इंडस्ट्री की बात नहीं है. दिस शिफ्ट इज ऑलमोस्ट इन ऑल इंजीनियरिंग सेक्टर्स
राइट नाउ, बी इट कोर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और स्टार्टअप। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका बीटेक डिग्री ही काफ़ी है, देन दिस इज योर वेकअप कॉल। हायरिंग इज नो लॉन्गर अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी प्लस स्किल्स प्लस माइंडसेट। इस शिफ्ट को समझना इज रियली इम्पोर्टेंट। अगर आप इस वेव के साथ चलोगे, यू विल बी रेलिवेंट। अगर अपोज करोगे या इग्नोर करोगे, देन यू माइट स्ट्रगल, नो मैटर विच कॉलेज यू आर फ्रॉम। In the next part, we shall talk about what exactly you can do to stay ahead in this changing scenario. अब हम बात करते हैं एक important question की, who is really hiring in 2025? और इसका there is a very simple answer. So there are two kind of companies who are hiring right now. One is the startups and one is the MSMEs. जहाँ ट्रेडिशनल IT हायरिंग स्लो हो रही है, वहीं स्टार्टअप्स और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSMEs आर ग्रोइंग लाइक नेवर बिफोर। लेट्स लुक एट सम रियल डेटा। पिछले 5 सालों में इंडिया में देर आर 65,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड। 53% ऑफ देयर हायर्स आर फ्रेशर्स। यस, यू आर दैट राइट। 30% का एनुअल जॉब ग्रोथ हो रहा है इन दिस सेगमेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 55% हायरिंग अब हो रही है टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस से। नाउ दिस इज अ मैसिव शिफ्ट। अर्लियर मोस्ट पीपल यूज्ड टू थिंक स्टार्टअप जॉब तो सिर्फ मेट्रो में मिलती है और सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए होती है, बट अब ऐसा नहीं है। स्टार्टअप्स आर नॉट जस्ट हायरिंग डेवलपर्स एनीमोर, दे आर एक्टिवली हायरिंग फॉर फ्रेशर्स इन रोल लाइक UI UX डिजाइनर, बिजनेस इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, AI एंड डेटा रोल। मतलब अगर आपके पास इन डिमांड स्किल्स हैं, इवन विदाउट अ फैंसी डिग्री, यू स्टैंड अ रियल चांस ओवर देयर। एक और इम्पोर्टेंट आइटम which we should talk about is the startups and MSMEs focus more on what you can do rather than where you studied. उनका इंटरव्यू होता है straight to the point. Can you solve this problem? Can you build this particular feature? Can you design some kind of software, some kind of this page? They won't ask you which college are you from. They will ask, can you deliver value from day one? और इसलिए आज के फ्रेशर्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। Let's understand why. पहले बड़ी कंपनीज ट्रेनिंग के लिए 3 to 6 मंथ का टाइम देती थी, बट स्टार्टअप्स डोंट हैव दैट लग्जरी। दे वांट पीपल हु आर जॉब रेडी, जो आगे ही काम स्टार्ट कर सके, जो सिर्फ नॉलेज नहीं प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लेकर आए। दे शुड ब्रिंग सम वैल्यू टू द टेबल। इसलिए इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशन, पोर्टफोलियोज, हैकेथॉन पार्टिसिपेशन, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। और एक और मिथ ब्रेक करते हैं, स्टार्टअप्स डू नॉट पे लेस। Yes, some early age startups may offer average packages, but those who are growing or funded startups, they often pay at par, या sometimes more than traditional IT companies. और सबसे बड़ी चीज़, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। स्टार्टअप्स में आप एक रोल के अंदर मल्टीपल चीज़ें सीखते हो। यू लर्न अबाउट मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, ऑपरेशंस, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू दी बिजनेस। इन जस्ट 1 or 2 ईयर आपका एक्सपोजर और लर्निंग किसी 4 ईयर कॉर्पोरेट जॉब के बराबर हो जाता है। प्लस डिसीजन मेकर्स के साथ काम करने का चांस मिलता है। योर इम्पैक्ट इज विजिबल एंड योर ग्रोथ इज मच फास्टर। सो इफ यू आर इन टीयर 2 or टीयर 3 cities, और इफ यू फील यू डू नॉट हैव द ब्रांड नेम कॉलेज डिग्री, डोंट वरी अबाउट इट। स्टार्टअप्स आर योर वे इन। बट येस, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको भी रेडी रहना पड़ेगा, विद द राइट स्किल्स, राइट माइंडसेट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अ लर्निंग एटीट्यूड। So remember, 2025 is not just the age of big brands and degree, it's the age of skill, speed and startup. आगे हम बात करते हैं which are the specific skills or tools industry demand and कैसे आप अपने प्रोफाइल को जॉब रेडी कर सकते हो even without campus placement support. So let's move forward. Now let's talk about one more game-changing trend, which is Global Capability Centers, means GCC. ये नाम आपने शायद पहले सुना हो या ना सुना हो, बट अब ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है। इट्स अ न्यू बिग लीग फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक टैलेंट इन इंडिया। इन टुडेज डेट इंडिया में 1600 से ज़्यादा GCC एक्टिव हैं और नए GCC हर क्वार्टर में लॉन्च हो रहे हैं। ये सेंटर्स क्या करते हैं? इन सिंपल टर्म्स, दीज आर द रिसर्च एंड इंजीनियरिंग हब्स जो दुनिया को टॉप ग्लोबल कंपनीज के लिए काम करते हैं। From right here in India, companies like Google, Amazon, Microsoft, JP Morgan, Siemens, Bosch, PepsiCo, and even non-tech giants like Target and Wells Fargo, सबके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर अब इंडिया में हैं।
और ये सेंटर्स सिर्फ बैकएंड या सपोर्ट का काम नहीं कर रहे हैं. दे आर बिल्डिंग रियल प्रोडक्ट्स, they are running critical platforms, they are driving innovation at scale, they are solving the real problems. Now let us look at some of the roles in demand inside these GCCs. First one is AI ML researcher. GCCs are doing real machine learning innovation, not just model implementation. There is a second role which is cloud infrastructure, managing global scale cloud environments, automation and DevOps pipeline. Third skill is data science, where they are working on advanced analytics, recommendation engines, fraud detection systems. सब यहाँ से ही हो रहा है. Cyber security is another big league where protecting the global assets, threat analysis and risk management is important. Now these all skills are high skills, high impact roles are these one. और सबसे important चीज, Indian engineers are leading this work. Earlier इंडिया में काफ़ी सारे रोल सिर्फ एग्जीक्यूशन लेवल होते थे, पर अब जीसीसीज में इंजीनियर्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन दी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, इनोवेशन एंड ग्लोबल डिसीजन मेकिंग. तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ फॉरेन जाके ही आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर मिलेगा, देन थिंक अगेन. इंडिया के अंदर ही जीसीसीज आर क्रिएटिंग सिलिकॉन वैली लेवल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. और क्यों हो रहा है ये शिफ्ट? 3 सिंपल रीजन. वन इज टैलेंट डेंसिटी, second is cost value balance, third is tech ecosystem maturity. What do I mean by talent density? India has a huge pool of engineering talent, skilled, English speaking and globally aware kind of pool of engineering people. So we do have talent density available here for GCCs. Cost value balance is like companies को high quality output मिल रहा है, that too at the optimized cost. Then tech ecosystem maturity is इंडिया का स्टार्टअप प्लस टेक इकोसिस्टम इतना मैच्योर हो गया है कि अब हम सिर्फ नाम नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनिंग द आउटकम. So GCCs are no longer just another job option, they are becoming the premium destination for ambitious engineers. Hiring भी काफ़ी डायनेमिक है. GCC look for people who are curious and research oriented, strong in problem solving, technically deep in one or more areas like data, AI, cloud or infrastructure, comfortable with global communication and collaboration. So if you are someone who wants a global career without leaving India, this is your moment, this is your chance. But remember, GCCs do not just want average performers. उन्हें चाहिए लोग जिनमें इनिशिएटिव हो, ओनरशिप हो, they can give quality और स्केल को समझते हों. So the big takeaway from this is, India is no longer just a delivery center, we are a global innovation hub now. और GCCs उस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है. In the next section, we will be discussing exactly how you can prepare for these kind of opportunities. फिर चाहे आप Tier 1 कॉलेज से हो या Tier 3 से हो, it's all about readiness now, not the background. Let's talk about another sector जो शायद headlines में नहीं होता, but silently इकोनॉमी का बैकबोन बन चुका है, which is MSME, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. In this whole conversation about startups, IT companies and GCCs, the real underdog is the MSME sector. You will be surprised to know, but MSMEs alone are expected to generate 23 million jobs by FY 2026. Yes, you heard that right. 2.3 crore jobs, and that too backed by government initiatives like Skill India and Digital MSME. MSMEs हर इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग, IT सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर, एडटेक, यू नेम इट. और ये सिर्फ Tier 1 सिटीज तक लिमिटेड नहीं है. MSMEs आर थ्राइविंग इन Tier 2 and Tier 3 सिटीज थैंक्स टू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. आज इन बिजनेसेस को भी चाहिए स्किल टैलेंट. लेट्स लुक एट वेयर द डिमांड इज इंक्रीजिंग. दे नीड क्लाउड कंप्यूटिंग रोल्स, दे हैव द अपॉर्चुनिटीज इन साइबर सिक्योरिटी, दे हैव द अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल ऑपरेशन. और एक और पॉजिटिव ट्रेंड जो MSMEs ड्राइव कर रहे हैं, विच इज वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन. Schemes like Mudra and Stand Up India are enabling more women to start businesses and take up tech-enabled jobs. This means जो लोग पहले वर्कफोर्स से दूर थे, उनके लिए भी नए डोर्स ओपन हो रहे हैं. एक और पावरफुल चेंज हो रहा है, विच इज रिमोट एक्सेस एंड डिजिटल टूल्स की वजह से Tier 2 and Tier 3 टैलेंट को भी फेयर चांस मिलता है. अब किसी स्मॉल टाउन के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को भी MSME जॉब मिल सकती है, चाहे वो क्लाउड में हो, डेटा ऑप्स में हो या मार्केटिंग ऑटोमेशन में. एंड द बेस्ट पार्ट, MSMEs often offer faster learning and greater responsibility from day one.
You are not just a cog in the machine. You are solving the real business problems over there, wearing multiple hats and growing quickly. So don't make the mistake of ignoring MSMEs just because they are not cool or well known. They are hiring aggressively, they need talent, and they reward performance. In short, MSMEs are India's silent job engine, and they can be your fastest path to career growth, especially if you are skilled, motivated, and ready to work on real world challenges. Next up, let's talk about what exactly you need to do to become job ready for these sectors. तो हमने 3 चीज़ों पर बात करी, GCC, स्टार्टअप्स एंड MSMEs। अब आते हैं कंपनीज को फ्रेशर्स में क्या चाहिए, लाइक इन 3 सेक्टर्स में जाने के लिए व्हाट डू यू नीड। तो ये वही गोल्डन क्वेश्चन है जो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिमाग में होता है, एंड द आंसर इज वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल। कंपनीज टुडे वांट यू टू बी एक्टिव। नाउ इट इज एक्टिव मीन्स ACTV. The spelling is wrong, but active is the powerful word. A means the aptitude, which is the logical thinking, numerical ability, or decision making skills. C means the cognitive skills, where you should be able to recognize the patterns, you should be able to solve the problems, and you should have a learning ability. T means technical knowledge, which is hands-on skill in trending the languages or technologies. V means verbal and communication, where English fluency, articulation, clarity of thought is required. So it means if you are active, then आप मार्केट के लिए जॉब रेडी हो। Let's go a level deeper. Now, what are the technologies in terms of T in active? What are the technologies which are trending? So the trending tech are AI/ML, wherein you need to learn the core innovation because AI and ML are everywhere right now. Second is the cloud computing. Whether it is AWS, Azure, or GCP, companies need cloud engineers to deploy and scale the application. Cyber security, there are tons of data and there are hacking tools as well. So we need to prevent those hacking tools. Full stack development, wherein front end back end दोनों समझने वाले डेवलपर्स को भी कंपनी जॉब के लिए रेडी मानती हैं. Then DevOps and data analytics, automation, monitoring, deployment and data driven decision making. This is the need of every company in the world. Communication and critical thinking, because आप जितने टेक्निकल हो उतना ही क्लैरिटी ऑफ थॉट भी रिक्वायर्ड है. लेकिन एक चीज़ और क्लियर करनी है, आपको सब कुछ नहीं आना चाहिए. यू डू नॉट नीड टू मास्टर एवरी सिंगल थिंग ऑन दिस प्लैनेट, लेकिन आपको एक चीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए, हाउ टू लर्न एनीथिंग क्विकली. बिकॉज टूल्स विल चेंज, टेक विल चेंज, टेक विल इवॉल्व, बट लर्निंग एबिलिटीज स्टेज द कॉन्स्टेंट and we should focus on the constant skill. So focus on building deep expertise in 1 or 2 core areas, और बाकी चीज़ों में आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से कवर कर सकते हैं. एंड द गुड न्यूज़ इज दैट इन सभी स्किल्स के लिए आपको एक्सपेंसिव MBA या फॉरेन डिग्री की ज़रूरत नहीं है. देयर आर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स और सेल्फ लर्निंग इज मोर देन इनफ अगर आप सीरियस हो. So the key message is be active, be skill first, be ready to learn, unlearn and relearn. That's what will make you future proof. Now let's go to the next section where we will understand how to make your profile industry ready. Now let's talk about the next topic, which is upskilling and career mobility. Now in today's world, it is moving very fast. जो स्किल्स आप आज सीख रहे हो वो कल आउटडेटेड हो जाएंगे, इसलिए स्टेइंग स्टैटिक या अपनी कंफर्ट जोन में रुकना सबसे बड़ा रिस्क है. कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूँ. आज 40% से ज़्यादा कंपनीज के पास फॉर्मल अपस्किलिंग प्रोग्राम्स है जहाँ वो अपने एम्प्लॉयज़ को नई स्किल्स सिखाते हैं. और सबसे अच्छी बात, ये प्रोग्राम्स सिर्फ ऑफिस में नहीं होते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग भी एम्प्लॉयर्स के साथ पॉपुलर हो रहे हैं. मतलब आप घर बैठे अपने टाइम पे अपनी स्पीड से स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, एंड कंपनीज भी इसे अप्रिशिएट करती हैं. और करियर ग्रोथ का मतलब आज लीनियर लैडर चढ़ना नहीं होता. अक्सर आपका करियर नॉन लीनियर होता है. शुरुआत आप सपोर्ट रोल से करते हो, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाते हो और फिर लीडरशिप रोल तक पहुंच जाते हो. एग्जाम्पल्स के लिए, एक इंजीनियर पहले कस्टमर सपोर्ट हो सकता है, लेकिन वो सीख के प्रोडक्ट मैनेजमेंट में शिफ्ट कर सकता है, या फिर एक डेवलपर डेवऑप्स या डेटा एनालिटिक्स में पिवट कर सकता है. पॉइंट ये है कि इट्स नॉट वेयर यू स्टार्ट, बट हाउ फास्ट और कितनी स्मार्टली आप मूव करते हो, दैट इज द पॉइंट.
अपस्किलिंग का माइंडसेट लाना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस लर्निंग, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप नए स्किल सीखने को रेडी हो, क्विकली अडैप्ट कर सकते हो, तो आपका करियर लॉन्ग टर्म में सेफ रहेगा। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने करियर का कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले लेते हो। किसी के डिसीजन का वेट नहीं करना पड़ता। तो अपने लिए गोल सेट करो, लर्न, पिवट एंड ग्रो। जो लोग इस माइंडसेट के साथ चलेंगे वही फ्यूचर प्रूफ बनेंगे। तो रेडी रहिए, सीखते रहिए और अपने करियर को नए डायरेक्शंस में ले जाते रहिए। लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। क्या सिर्फ डिग्री लेना ही जॉब गारंटी होता है? ऑनेस्टली नहीं। आज के कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में डिग्री इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, बट इट्स नॉट डेफिनेटली इनफ। ये बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि नास्कॉम रिपोर्ट, इंग्लिश रिपोर्ट, डेलॉइट रिपोर्ट, मैकेंजी एंड कैम्ब्रिज जैसे ट्रस्टेड सोर्सेज की रिपोर्ट्स बता रहे हैं। इन रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि डिग्री के साथ साथ कंपनीज को चाहिए स्किल, अडेप्टेबिलिटी एंड रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। सर सिर्फ डिग्री पर रिलाई करना आपको मार्केट से पीछे कर देता है। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, अपनी स्किल सेट को कंटिन्यूसली अपग्रेड करना। जैसा हमने पहले डिस्कस किया इन एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन, ये सब आपके पास होना चाहिए। दूसरा स्टेप, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करो। इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसर्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, ये सब आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। थर्ड स्टेप, नेटवर्किंग बिल्ड करो। इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट करो, लिंक्डइन पर एक्टिव रहो, वेबिनार्स अटेंड करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइंडसेट को रेडी करो। लर्न फास्ट, अडेप्ट फास्ट और नए अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा ओपन रहो। डिग्री इज अ टिकट, बट स्किल्स, एटीट्यूड एंड एक्शन प्लान इज द गेम चेंजर। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपना जॉब सर्च स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, ताकि आप मार्केट में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाओ। और जब हमने जो मार्केट का रियलिटी चेक किया, कंपनीज के डिमांड समझ लिए और स्किल गैप्स भी डिस्कस कर लिया, तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपका एक्शन प्लान। ये वो चेकलिस्ट है जो आपको आज से शुरू कर देनी है, और अगर आप अपना करियर के लिए सीरियसली हो। नंबर 1, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। अगेन, गिटहब पोर्टफोलियो, बिहेंस पोर्टफोलियो फॉर डिजाइनर्स, टैबल्यू डैशबोर्ड्स बना के रखो, विजुअलाइजेशन स्किल शोकेस करिए। पोर्टफोलियो अगर आपके टैलेंट के सबसे बड़ा पोर्टफोलियो आपके टैलेंट के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। नंबर 2, कंप्लीट रियल इंटर्नशिप, चाहे अनपेड हो। इंटर्नशिप आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर देती है, रियल प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात, रिज्यूमे में स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस ऐड होता है। आज के ज़माने में अनपेड इंटर्नशिप्स भी वैल्यूएबल होती हैं अगर आपको लर्निंग मिल रही हो। नंबर 3, जॉइन हैकेथॉन्स एंड ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स। हैकेथॉन्स आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकररैंक, कोडशेफ, कैगल और डेवपोस्ट पे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए। आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और नेटवर्किंग का चांस भी बढ़ा देंगे। नंबर 4, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। इंजीनियरिंग जॉब सिर्फ टेक्निकल स्किल से नहीं होती, आपको अपने आइडियाज़ को क्लियरली आर्टिकुलेट करने का और प्रेजेंट करने का नज़रिया आना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन स्किल्स, इंटरव्यू कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। जो लोग कॉन्फिडेंट हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। नंबर 5, फॉलो हायरिंग ट्रेंड्स क्लोजली। स्टार्टअप, जीसीसी, प्रोडक्ट कंपनीज, ये सब अलग अलग अप्रोच से हायरिंग करते हैं। रेगुलरली जॉब पोर्टल, लिंक्डइन और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पर नज़र रखिए। मार्केट के चेंजेस के साथ अपने प्लान्स को अपडेट करते रहिए। ये 5 स्टेप आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और एक और चीज़, पेशेंस रखिए। ये जर्नी एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं। अपनी स्किल्स को कंसिस्टेंट वे में इम्प्रूव करते रहिए और हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए रेडी रहिए। तो अभी से प्लान बना के चलिए, पोर्टफोलियो बनाइए, इंटर्नशिप ढूंढिए, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए, कम्युनिकेशन पे काम कीजिए एंड मार्केट ट्रेंड फॉलो करिए। यही है आपके सक्सेस का फॉर्मूला। तो दिस वेबिनार डेटा गिव्स अस अ क्लियर मैसेज। डिग्री के साथ साथ वी नीड स्किल सेट एंड द अपग्रेड एंड द अडेप्टेबिलिटी टू द मार्केट। तो दोस्तों, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं एक स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ। इंजीनियरिंग कोई जॉब गारंटी नहीं है, ये एक लाइसेंस है टू बिल्ड समथिंग, टू सॉल्व समथिंग, टू लीड समथिंग। योर डिग्री इज अ पासपोर्ट जो आपके इंडस्ट्री में एंट्री देती है, लेकिन जो चीज़ें आपको फ्यूचर में सक्सेस दिलाएंगी वो है आपका कंटिन्यूस लर्निंग, आपके प्रोजेक्ट्स एंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो हमेशा न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन रहिए, इम्प्रूव योर सेल्फ ऑल द टाइम एंड सी if you are staying curious, staying relevant and build relentlessly. Thank you for joining this session, the engineering job and the reality check. I wish you all the best for your career journey ahead. Keep learning, keep growing.